Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So finally I'm back with another video. So I'll tell you the plan. First of all, I'll be uploading all the pending essays of Essay 500 series, and after that I'll be going forward for the Essay 700 series. So in December only we are going to have all these essays on YouTube. Don't worry about that. In 2020 we have this target. We'll complete all these essays, and in the new year we'll be done with the essays part, right? So let's begin with the essay 520 today. Essay 520 is about the analytical procedures. If you remember, we have already studied essay 315. In case you haven't, you can check out the video. Essay 315 was regarding the risk assessment procedures and the responses with that, right? So in that particular case also we studied how we have to apply the analytical procedures as the risk assessment procedures, right? If you remember that, if you don't, just revise it quickly. And in this particular essay, what is the scope of this essay? So the scope of this essay is that we are going to use the analytical procedures as the substantive analytical procedures. So if you remember, the substantive procedures are further divided into two parts. First one is the test of details and second one is the substantive analytical procedures. Both of them are different, but they are the substantive procedures. Now what do you mean by the analytical procedures? So if I say analytical procedures, तो analytical procedures का मतलब होता है procedures we use to evaluate the financial information by establishing the relationship among the financial data and the non-financial data, and also includes the investigation of the identified fluctuations. Now what does this mean? You are performing some procedures. Why are you performing those procedures? The procedures you are performing is to evaluate the financial information. अब financial information कौन सी? आपकी balance sheet में, आपके financial statements में काफ़ी सारी information है which is of financial nature, and those financial informations you want to evaluate. Now how you are going to evaluate them? You are going to establish the relationship amongst the data which is present. Data can be in the form of financial information, data can be in the form of non-financial information. So you are trying to make a relationship between the two, and you are trying to create a relationship amongst the two so that you can evaluate the financial information. For this you are using some procedures, you are applying some procedures. So these procedures are called as the analytical procedures. Now once you have established the relationship among the financial data and the non-financial data, and you have evaluated the financial information, now in this particular process you might find some fluctuations. For example, after applying these procedures you got some figure, right? Now as per your calculations, computations, you are getting a figure of 1 lakh rupees, but as per the financial statements the figure is say 1,20,000. So now in this particular case there is a fluctuation of 20,000. You have identified these fluctuations. Now what are you going to do? You are going to investigate the same. Why this 20,000 difference is there? You have to check. Obviously you will see कि material है या नहीं, तो materiality का concept भी यहाँ पर आ जाएगा essay 320. एंड ऑल्सो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि किस चीज़ का कंपैरिजन किस चीज़ के साथ करना है. तो यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स को सीधा सीधा समझें तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ सकता है कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उस डेटा में से वी विल सेग्रीगेट और वी विल सिलेक्ट द फाइनेंशियल डेटा एंड द नॉन फाइनेंशियल डेटा, एंड वी आर गोइंग टू मेक अ रिलेशनशिप अमंगस्ट दैट, एंड आफ्टर मेकिंग द रिलेशनशिप और creating the relationship, we are going to do what? We are going to evaluate the financial information with respect to the same, right? Now we have understood what is analytical procedures. अच्छा, अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिगार्ड में अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रखने पड़ेंगे? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, क्योंकि मैं तो ऑडिटर हूँ, मुझे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज़ कर रही हूँ? दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू मी. ठीक है, उससे पहले हम ये समझ सकते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर देयर आर टू थिंग्स. First is the consideration of comparison and second one is the consideration of relationships. Now when I say consideration of comparison, तो comparison किस चीज़ का? entity की जो financial information हमारे पास है उस financial information का comparison with the prior period information or the anticipated information or the industry average. Now
वाई दीज थ्री? देखो, अब आपका प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप उसको कंपेयर किससे कर सकते हो? या तो जो पास्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपकी जो पिछले साल की बैलेंस शीट है, आप उसके साथ कंपैरिजन्स कर सकते हो, राइट क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें हम 2 ईयर के 2 पीरियड का दिखाते हैं डेटा, राइट। सो फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 की फिगर्स हैं तो 31 मार्च 19 की भी फिगर्स उसमें अवेलेबल होंगी। नाउ यू हैव वन ऑप्शन कि आप उसका कंपैरिजन कर लो विद 2019 एंड 2020, दोनों का कंपैरिजन कर लो। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आपने कुछ प्रोजेक्शंस करी हैं, उसके बेसिस पर यू कैन कैलकुलेट कि हाँ एंटिसिपेटेड है कि मेरे को लगता है इतनी फिगर होनी चाहिए थी यहाँ पर, एंड नाउ व्हाट इज़ देयर, ठीक है। तीसरा केस हो सकता है कि इंडस्ट्री एवरेज, पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो और भी लोग हैं, इंडस्ट्री का क्या एवरेज है उसके बेसिस पर यू कैन कैलकुलेट, क्योंकि जब सपोज कोई एक कंपनी है, वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, सिमिलर चांसेस है ना कि लगभग सेम सा ही उनका सपोज प्रॉफिट रेशो हो सकती है, नेट प्रॉफिट रेशो हो सकती है, सपोज उनकी ईपीएस ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, वी कैन चेक लाइक दैट एज वेल, राइट। सो कंपैरिजन एक चीज़ हो गई विद रिस्पेक्ट टू दी entity's financial information. Second, what you need to consider is the relationship among the elements of financial information and the elements of financial and non-financial information. Now जब आप financial information के ही elements का relationship चेक कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए रेलेवेंट होता है, वो भी एक तरीके से आपका एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। और जब आप एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करके कंपेयर करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर की। सो व्हेन आई से ऑडिट प्रोसीजर, तो ऑडिट प्रोसीजर के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। सूटेबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शंस कितनी है। अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हैं तो उस केस में टेस्ट ऑफ डिटेल्स आपका सूटेबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप डिटेल्ड चेकिंग हर चीज़ की नहीं कर पाओगे, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा किस पर? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर, जिसका मतलब हो गया फॉर एग्जांपल आपने सपोज़ मैं होटल का एग्जांपल ले लेती हूँ। होटल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ रूम्स एंड आपको चेक करना है कि पूरे साल में जो रूम रेंट्स हैं उसके बेसिस पर मतलब कितना ऑक्यूपेंसी रहती है और कितना रेंट है और कितने रूम्स हैं, उसके बेसिस पर आप एक मोटा मोटा अमाउंट निकाल सकते हो कि हाँ अगर मैं ऑन एन एवरेज बेसिस देखूँ तो इतना मेरी रेंटल इनकम आनी चाहिए ऑफ दिस पर्टिकुलर होटल, राइट। तो इसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सपोज़ नॉर्मल रूम्स जो हैं, प्रीमियम रूम्स हो गए, रेगुलर रूम्स हो गए, स्वीट रूम्स हो गए, तो इनका एक अब इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लो कि इस पर्टिकुलर रूम का रेंट ऑन एन एवरेज इतना बनता है पर डे के हिसाब से, और ये वाली कैटेगरी के रूम्स मेरे पास टोटल सपोज़ 50 हैं और इसका रूम का रेंट सपोज़ 5,000 रुपये है पर डे का। और ऑक्यूपेंसी जनरली अगर मैं देखूँ तो ऑक्यूपेंसी रेशो मेरी रहती है 80%, ठीक है। तो 80% इंटू 5,000 इंटू कितने रूम्स बोले थे मैंने? 30, तो 30 रूम्स मल्टीप्लाई करा इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर, तो मुझे ईयरली पता चल जाएगा कि कितना रूम रेंट हमने अर्न किया होगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले रूम्स से। ऑब्वियसली दिस वॉन्ट बी द करेक्ट आंसर और एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, विच वी ऑल नो, बट एक मोटा मोटा रफ फिगर तो मुझे मिल जाएगी ना कि हाँ इसके आसपास होना चाहिए। बेस्ड अपॉन माई मटीरियलिटी आई विल डिसाइड कि हाँ ठीक होगा, आई डोंट नीड टू डू द टेस्ट ऑफ डिटेल्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, जहाँ पर मैं मोटा मोटा अमाउंट निकाल रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द डिटेल्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। आई एम मेकिंग द रिलेशनशिप्स अमंगस्ट देम एंड आफ्टर मेकिंग द रिलेशनशिप्स आई एम जस्ट इवेलुएटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू मी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। बाकी अभी हम नोट्स पढ़ेंगे ना तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ एक मोटा मोटा रिव्यू दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस पर्टिकुलर एसे में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आपका जो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं।
फॉर एग्जांपल आप कभी कभार हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर रहे कभी कभार हो सकता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर रहे हो सकता है कभी कभार आप एंटिसिपेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो, कभी आप प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो, कभी इंडस्ट्री एवरेज यूज़ कर रहे हो. सो दिस कैन depend or this can change with the scenarios, with the circumstances and with the requirements. आपको हो सकता है कभी कभी प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करना रेलेवेंट लगे, कभी हो सकता है इंडस्ट्री एवरेज रेलेवेंट लगे. सो हर एक पर्टिकुलर कंपैरिजन का जो आपका सोल्यूशन होगा, अश्योरेंस लेवल होगा, वो डिफरेंट मिलेगा आपको, क्योंकि हर एक केस में अलग अलग अश्योरेंस लेवल है, अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप इसको डिसाइड इस बेसिस पे कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट है. हो सकता है कहीं कहीं आप प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करो तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिले, आपको समझ आ जाए हाँ ये ठीक है या नहीं. बट कहीं कहीं होता है कि हमें इंडस्ट्री एवरेज यूज़ करके ही समझ आता है कि जो फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन्ड हैं वेदर दे आर रिलायबली करेक्ट और नॉट. राइट. तो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं एंड यू डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, द सिचुएशंस, द इंफॉर्मेशन, द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई होप वी आर क्लियर टिल हियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन हो सकता है जैसे कि अब आपको सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कितना लगाना भी है या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे. देखो जहाँ जहाँ पे आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हो, तो सबसे पहले आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करे अगर सपोज, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बेसिस पर यू रियलाइज्ड कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द डिटेल्ड चेकिंग. या हो सकता है आपने चेकिंग करी है बट स्टिल यू फील द सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना ज़रूरी है, कंपैरिजन करना ज़रूरी है. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू विल डू इट. तो इट विल डिपेंड कि आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स कितना किया. टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज़्यादा कर लिया होगा तो यू माइट नॉट नीड द सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स वेरी मच, बट येस इफ यू हैव डन इट लेस देन ऑफ कोर्स यू विल नीड द सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ओके, नाउ वंस यू हैव डन दिस ऑल्सो यू हैव टू चेक आप किसके भरोसे सारे काम कर रहे हो. You are doing the work on the basis of data which have been provided to you. Now you have to check whether that data is relevant or not, or whether the data is reliable or not. If the data is not reliable, तो definitely your results would be अनरिलायबल, क्योंकि आप जिसके बेसिस पर जिसके ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हो अगर वही गलत है तो डेफिनेटली इनपुट गलत होने से आउटपुट गलत ही आएगा, कभी भी सही नहीं आएगा. सो यू हैव टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा. हाउ कैन यू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा? यू कैन चेक इट बाय द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. सोर्स कहाँ है, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज हैं, हाउ द इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग फॉर दोज पर्टिकुलर थिंग्स. You can be sure by that as well. Also you can compare the information and also you can see whether this information is comparable. आप ऐसा भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए बट अगर आप उसको चेक करने के लिए कि रिलायबल है या नहीं, इसको कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम की बात है. थर्डली यू कैन चेक कि उस इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या है, कितनी रेलेवेंट है. ऑल्सो यू कैन चेक कि इन्फॉर्मेशन को जब बनाया जाता है तो उस टाइम पर मैनेजमेंट ने, एंटिटी ने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन सही हो, गलत इन्फॉर्मेशन ना आए, गलत डेटा आपका आगे जाके गलत डेटा की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रेजेंट हो. सो इसके लिए क्या कंट्रोल्स लगाए गए हैं. सो दिस कैन हेल्प यू टू मेक श्योर कि डेटा आपका रिलायबल है भी या नहीं. ठीक है. ऑल्सो जो भी आपके अमाउंट्स मैंशनड हैं उस पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था. अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो तो यू फॉर्म दी रिलेशनशिप्स अमंग द डेटा एंड देन यू जस्ट अप्लाई दी प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सो बाय डूइंग दिस व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग एन एक्सपेक्टेशन कि ये अमाउंट आना चाहिए था यहाँ पर, एंड बाय डूइंग दैट यू कैन बी श्योर कि हाँ ठीक अमाउंट है या नहीं, कितना टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने की ज़रूरत है, कितना डिटेल में चेकिंग करने की ज़रूरत है. ठीक है. आप एक मटीरियलिटी लेवल ज़रूर हमेशा निकालोगे क्योंकि हो सकता है ना, देखो ऑब्वियसली बात है एकदम एग्जैक्ट आपको सही आपने जो कैलकुलेशन करी है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है वो एग्जैक्टली सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बिकॉज यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इट फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बट यू आर डूइंग इट ऑन द
ब्रॉड व्यू, राइट. सो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो दैट इज़ वाई यू नीड टू सी कि थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना टॉलरेबल रेंज है. अगर टॉलरेबल रेंज होगा तो रेंज के अंदर अंदर होगा तो डेफिनेटली आपको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा. लेकिन अगर आपका टॉलरेबल रेंज से बाहर जा रहा होगा तो उस पर्टिकुलर केस में यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट द फ्लक्चुएशंस, राइट. सो कोई भी डिफरेंसेस हैं तो आपको चेक करना है, मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे कोई एविडेंसेस लेने की तो ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ठीक है मैंने ये निकाला था फिगर एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समथिंग एल्स, बट द डिफरेंस इज ड्यू टू दीज रीजंस, दीज पर्टिकुलर रीजंस विच आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट और आई हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस विद रिगार्ड टू द सेम, राइट. तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं कहीं मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर मैं सेटिस्फाइड हूँ विद द रिप्लाईज गिवन बाय द मैनेजमेंट, राइट. सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि टॉलरेबल रेंज क्या है. पहले तो ये डिसाइड करो, फिर देखो कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है. तो ये मेरा सारा का सारा ऐसे 520 का डिस्कशन था. अब हम इसको नोट्स के साथ साथ कवर करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू रीड द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आई विल एक्सप्लेन इट, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज दिस पर्टिकुलर essay because this is not a very technical standard I would say, and it is simple one and a short one. So we are not going to waste a lot of time in this. You have to revise this either once or twice and you'll be done with this, right. इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो ये है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड सेकेंडली यू शुड नो व्हाट इज़ द ऑडिट प्रोसीजर while using the analytical procedure. So that will go, that will be fine for this particular essay, right. So let's start with from the notes. Essay 520, analytical procedures. Now in this particular case, first of all let's understand what is the scope of essay 520. So it deals with the use of analytical procedures as the substantive analytical procedures. So use of analytical procedures as substantive analytical procedures. The application of analytical procedures as risk assessment procedures are covered in essay 315, which we have already covered, and I hope you have revised the same as well. Next, what is the meaning and the nature of analytical procedure. अब हम पढ़ रहे हैं जो essay है उसका मीनिंग पता होना ज़रूरी है, उसका नेचर पता होना ज़रूरी है. सो अगर मीनिंग की बात करूँ तो मीनिंग क्या है, प्रोसीजर्स used to evaluate the financial information by establishing the relationship among the financial data and the non-financial data, and also includes investigation of identified fluctuations. So आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये इस डेफिनेशन पे काफ़ी ज़ोर देकर बोला था कि आपको करना क्या है, आपको वो प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करना है. और एनालिटिकल प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते हो. इवैल्यूएट कैसे करोगे, आप फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो जिसकी वजह से यू आर एबल टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड द एनालिटिकल प्रोसीजर. अब इसके अंदर अगर आपको कोई फ्लक्चुएशंस मिलती हैं बाई इवैल्यूएटिंग दिस, तो आप उसको उस केस में क्या करोगे, उस केस में इन्वेस्टिगेशन करोगे विच इज़ ऑल्सो एन एनालिटिकल प्रोसीजर. आई होप आई एम क्लियर. ओके, अब एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या क्या आता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर में देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन of the entity's financial information, and secondly you have to consider the relationship. Now क्योंकि आपने अभी देखा होगा डेफिनेशन के अंदर these were the important terms. First of all relationship and the financial information. These are the two things, right? So if I say the first one, consideration of comparison, in this particular case consideration of comparison of the entity's financial information with what, किससे कंपेयर करोगे, यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन या फिर एंटिसिपेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर इंडस्ट्री एवरेज, किसी के साथ भी कंपेयर करके यू कैन गेट द रिजल्ट्स. नाउ कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग्स व्हाट, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जीपी रेशो हो गया, एनपी रेशो हो गया, या फिर दूसरा क्या था, एलिमेंट्स ऑफ
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी लेबर टर्नओवर हो गई, डिविडेंड रेशो हो गए। आपने इधर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों के एलिमेंट्स को लेकर कुछ एक रिलेशनशिप बनाया कि हाँ ये दोनों आपस में रिलेटेड है, लेट्स कंबाइन देम, लेट्स यूज देम फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके साथ करोगे? इनके साथ करोगे। कंपैरिजन कैसे करना है, किसके साथ करना है, वो यहाँ दिया हुआ है। अब करोगे कैसे? रिलेशनशिप्स क्रिएट करके यू विल कंपेयर। ठीक है, चलो let's move on to the important part, which is the audit procedure while using the analytical procedure. Now in this particular procedure we have total 5 points to remember. First one is to evaluate the suitability of particular substantive analytical procedure, कि कौन सा particular substantive analytical procedure suitable होगा उसको evaluate करना है सबसे पहले। तो अब ये कैसे करेंगे? सो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर जनरली मोर सूटेबल। कब सूटेबल होते हैं? जब ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम लार्ज होता है, दैट कैन बी प्रिडिक्टेड ओवर अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो आपको रूम रेंट वाला एग्जाम्पल दिया था होटल के केस में, वो ये था, रूम रेंट इन केस ऑफ अ होटल कैन बी प्रिडिक्टेड एज, एक कैटेगरी का कोई भी रूम पकड़ लो, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि सपोज़ मेरे पास 3 तरीके के रूम्स हैं, तीनों को टोटल रूम्स ले लिए, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे कि आप टैरिफ रेट क्या लोगे, क्योंकि हर एक रूम का रेंट अलग रेट पर होता है। स्वीट में महंगा होगा, प्रीमियम का अलग रेट होगा, रेगुलर रूम का अलग रेट होगा। सो फॉर ऑन दैट बेसिस, और उनकी ऑक्यूपेंसी रेशियो भी डिफरेंट होगी। पूरे साल में ज़रूरी नहीं है एक ही तरह की ऑक्यूपेंसी रेशियो होती है फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रूम। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कंसिडर इट कैटेगरी वाइज, यू हैव टू सी इट कैटेगरी वाइज की नंबर ऑफ रूम्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं या कितने हैं टोटल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द कितने टोटल रूम्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के। सेकेंडली यू विल मल्टीप्लाइड विद द ऑक्यूपेंसी रेशो, कितना ऑक्यूपेंसी रेशो है, इतना ऑक्यूपाइड रहते हैं ये वाले पर्टिकुलर टाइप के रूम्स पूरे साल में, और ये मेरा एवरेज टैरिफ है पर डे। तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे साल में टोटल कितना रूम रेंट होगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी के रूम्स का। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हर कैटेगरी का निकाल सकती हूँ और मैं एस्टिमेट कर सकती हूँ कि टोटल रूम रेंट पूरे साल में कितना होगा। अब उसके आसपास अगर मुझे अमाउंट्स मिल गए तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, टॉलरेबल रेंज से बाहर होगा, तो डेफिनेटली आई मूव ऑन टू दी टेस्ट ऑफ डिटेल्स और आई इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट, आई ऑब्टेन दी एविडेंसेस, राइट। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी ऑफ दिस, एम्प्लॉई सैलरी कैन बी प्रिडिक्टेड एज। कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि मेरे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के इतने हैं, इनकी एवरेज सैलरी पर मंथ इतनी है, तो 12 महीने की सैलरी टोटल पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, दिस कैन बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये आप खुद बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस चीज़ का कैलकुलेशन करना है, क्या चीज़ देखनी है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। नाउ different types of substantive analytical procedures will provide different levels of assurance to the auditor. For example, in a particular situation, comparison of one financial information with the other period information may be considered more suitable than comparison with the industry average or anticipated information. हो सकता है कई बार comparison आपको industry average के साथ ज़्यादा suitable लगे, हो सकता है कभी कभार prior period अच्छा लगे, कभी कभार anticipated information के basis पर आपको comparison करना suitable लगे। This will all depend upon the आइटम हेड जिसके बेसिस पर या जिसको आप कंपेयर कर रहे हो या जिसके लिए आप कंपैरिजन करना चाहते हो। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस एंड द ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट, suitability of substantive analytical procedure may be considered on the basis of extent of test of details performed for the same assertion. अगर आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स अच्छे से कर लिया है तो हो सकता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको उतना ना करना पड़े, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन द डिटेल्ड चेकिंग। तो अब डिटेल में कर ही लिया है तो क्या करना, राइट। सो सूटेबल है या नहीं वो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बेसिस पर डिसाइड करोगे।
तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इवैल्यूएट किया है सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कैसे किया, पहले हमने बताया कि सूटेबल तब ज़्यादा होता है जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंडली हमने देखा कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ सब्सटैंटिव या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स विल प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस टू द ऑडिटर। एंड थर्डली सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की सूटेबिलिटी टेस्ट ऑफ डिटेल्स की एक्सटेंट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। अब आप जिसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन देख रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो, यू हैव टू चेक ना कि इनपुट सही है या नहीं, तभी तो आउटपुट का कंपैरिजन करना सही होगा। तो इनपुट चेक करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, आप देख सकते हो कि वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या वो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल है, उसका नेचर, उसका रेलेवेंसी, वो सब चेक करो। देखो कि जब वो इन्फॉर्मेशन को बनाया जाता है तो उधर क्या इंटरनल कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, जहाँ पर जैसे उसकी प्रिपरेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली योर डेटा वुड बी रिलायबल। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसके बेसिस पर यू कैन डिसाइड कि हाँ डेटा आपका रिलायबल है या नहीं। व्हाट आर दीज फैक्टर्स, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सेकेंडली कंपैरेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, thirdly the nature and relevance of information, and fourth one is the controls over the preparation of the information. Okay, thirdly you will develop an expectation of recorded amount or ratio. आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल होटल वाला दिया, एम्प्लॉय वाला दिया, तो उसके बेसिस पर यू कैन डेवलप एन एक्सपेक्टेशन कि इतना इतना इसका अमाउंट होना चाहिए था या ये रेशो इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस सिलेक्टेड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को इन्फॉर्मेशन या डेटा पे अप्लाई करके देखोगे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री एवरेज आ रहा है इतना इस पर्टिकुलर डेटा का, तो क्या हमारे कंपनी लेवल पर भी ये रेलेवेंट है या नहीं, यू विल डिसाइड ऑन दैट, राइट। सो यू विल डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट और द रेशो. Fourth, determine the tolerable range of misstatements for which no further investigation is required. This is based on which aspect? Materiality aspect. आपको पता है इतना मेरा मटीरियलिटी लेवल है, इसके बियॉन्ड जाता है तो मुझे चेकिंग करनी पड़ जाएगी। ज़्यादा मटीरियल होगा तो आई विल हैव टू चेक, अगर ज़्यादा मटीरियल नहीं है तो डेफिनेटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट डिटर्मिन द टॉलरेबल रेंज ऑफ मिसस्टेटमेंट, जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ डिफरेंस अराइजेज बियॉन्ड द टॉलरेबल रेंज, तो उस केस में ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकता है इन रिलेशन टू द रीजनेबलनेस ऑफ देयर रिप्लाईज, कि उनका रिप्लाई कितना रीजनेबल है, कितना जस्टिफाइड है, उसके बेसिस पर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले लो। अगर आपको लगता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना ज़रूरी है, भाई यहाँ पर तो मटीरियलिटी लेवल बिल्कुल ही टॉलरेबल रेंज से, हमारा टॉलरेबल रेंज बिल्कुल पार हो चुकी है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल गड़बड़ लग रही है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे भी जाना पड़े तो जा सकते हो। ठीक है, नाउ so this was all about this particular essay 520. let's quickly wrap it up. ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में सबसे पहले हमने देखा कि इस पर्टिकुलर एसए के अंदर, एसए 520 के अंदर हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज़ देख रहे हैं एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल डेटा and the non-financial data, and also includes the investigation of identified fluctuation. Analytical procedures comprises of two things. First of all, consideration of comparison of entities' financial information with the prior period information or the anticipated information or the industry average. Secondly, it comprises of the consideration of relationships among the elements of financial information and the elements of financial and non-financial information. Last इसमें जो topic है that is the audit procedures while using the analytical procedures. इसमें we have 5 points. First of all, evaluate the suitability of particular substantive analytical procedures. Secondly, you will evaluate the reliability of data. Thirdly, you will develop an expectation of recorded amount or ratio. Fourth, determine the tolerable range of misstatements for which no further investigation is required. And fifth one is, if any difference is there, that the difference is beyond the tolerable range, then what you need to do.
right? So in the first point we have three further points. First of all, suitability से related है कि आपका substantive analytical procedure is more suitable for the large volume of transactions that can be predicted over a period, जिसमें मैंने दो examples आपको बताए थे, room rent और employee salary वाला. Second point इसमें है कि आपको different types of substantive analytical procedures will provide different levels of assurance. And thirdly, substantive analytical procedure की suitability may be considered on the basis of the extent of TOD performed for the same assertion. Second point क्या था? Evaluate the reliability of data. This depends upon a few factors. 4 factors have been mentioned. First one is the source of information available. Secondly, comparability of the information. Thirdly, nature and relevance of information. And fourth one is the controls over the preparation of information. ठीक है. Third point is develop an expectation of recorded amount या ratio. So you will develop the expectation of recorded amount or ratio by applying the selected substantive analytical procedure over the information or the data. Next is the determination of tolerable range of misstatements for which no further investigation is required. This is based on the materiality aspect. Now, last point is if difference arises beyond tolerable range, in this particular case, what will the auditor do? Auditor shall inquire the management and obtain the sufficient and appropriate audit evidence in relation to the reasonableness of their replies, perform the test of details as seems appropriate. Okay, so this is all about this particular essay. I hope you have understood this essay. You have understood what is analytical procedure, what is substantive analytical procedures, what are test of details, and you have understood the audit procedure also with respect to this. So yeah, that's all for today. Thank you so much for watching this video. If you like the video, don't forget to give it a big thumbs up, and subscribe to my channel in case you haven't done it. Also, you can check out other videos of standards on auditing which have been already uploaded on this channel. In case you have some doubts or queries, you can mention them in the comment section below. I'll reply to your queries as soon as possible. Okay, so thank you so much guys. This is all for today. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.